بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ داستان صابر پارٹ 2۔ ناظرین، داستان صابر کے پارٹ 2 میں ہم جانیں گے صابر پاک کی زندگی کے معجزات اور ان کی شادی کے بارے میں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں داستان صابر پارٹ 2۔ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مخدوم پاک رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے والدہ کے روبرو بلا کر حکم دیا کہ صبح سے تم لنگر کا انتظام اور کھانا تقسیم کیا کرو۔ یہ حکم سن کر صابر پاک کی والدہ بہت خوش ہوئی۔ بابا فرید گنج شکر کے مطابق آپ نے بخوشی خدمت تقسیمی لنگر کو قبول کیا۔ اس وقت آپ کی عمر صرف 11 سال کی تھی۔ اس کے بعد روزانہ اشراق کی نماز کے بعد آپ اپنے حجرے سے باہر تشریف لاتے، لنگر تقسیم کرتے اور پھر اپنے حجرے میں چلے جاتے اور حجرے کا دروازہ بند کر کے تنہا رہتے تھے۔ شام کو بعد نماز مغرب لنگر تقسیم کرتے اور پھر اپنے حجرے میں چلے جاتے۔ کسی نے حضرت کو تقسیمی لنگر کے وقت یا بعد میں کھاتے پیتے نہیں دیکھا۔ یہ خدمت 12 سال تک روزانہ کری۔ جب سے حضرت بابا فرید گنج شکر نے لنگر کھانے کا کام آپ کے سپرد کیا تھا، اسی دن کے بعد سے کبھی آپ کو کچھ کھاتے پیتے کسی نے نہیں دیکھا۔ مطلب یہ کہ آپ نے اسی دن سے اپنے جسمانی غذا ترک کر دی تھی اور آپ کی زندگی کا دار و مدار تمام روحانی غذا پر تھا۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ آپ کا ایک شیخ ساتھی نے آپ کو آپ کے حجرے کے اندر روتے دیکھا تو رونے کا سبب پوچھا۔ آپ نے جواب دیا، آج سے اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیائے فانی سے لا تعلق بنا دیا ہے۔ آج کے بعد غجار الغیب اور اولیاء اللہ کے سوا اور کوئی متنفس میرے پاس نہیں آئے گا۔ لہٰذا اسی روز کے بعد آپ حجرے مبارک کے اندر داخل ہونا تو درکنار کسی متنفس میں اتنی ہمت بھی نہ تھی کہ آپ کے حجرے مبارک کے قریب بھی بھٹک سکتا۔ اسی دن سے آپ کے دنیا کے تعلقی اور قوت جذب شدت بڑھتی چلی گئی، یہاں تک کہ اتنی زیادہ ہو گئی کہ جس کے مثال ملنا بہت مشکل ہے۔ آپ کی قوت جذب بیان کرتے ہوئے حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ رغم تراج ہیں کہ ایک دن میرے لڑکے نعیم الدین کو نہ جانے کیا سوجھی، کیوں آپ کے حجرے کے اندر جھانکنے لگا۔ اسی وقت اسے خون کی الٹی ہوئی اور انتقال کر گیا۔ اسی طرح میرے لڑکے عزیز الدین آپ کے اجازت کے بغیر لنگر کھانے جا کر لازم کے منع کرنے کے باوجود اپنے آپ لنگر تقسیم کر دیا۔ جب وہ لنگر تقسیم کرنے چلے گئے تو کچھ دیر بعد جب آپ لنگر تقسیم کرنے کے لیے گئے تو لازم سے کہا، لاؤ لنگر تقسیم کریں۔ تو اس پر
लाजिम ने तमाम वाक़या बयान किया। इस पर आपने कहा कि खाना बिल्कुल भी तकसीम के लिए बाकी नहीं है। तो लाजिम ने कहा कि जी बिल्कुल भी बाकी नहीं है। जब यह सुना तो आप जज्ब की हालत में आ गए और अचानक आपके मुंह से निकला, क्या वह बाकी रह गया? इस जुमले का निकलना था कि अजीजुद्दीन का उसी वक्त इंतकाल हो गया। ऐसे ही एक रोज़ मेरा लड़का फरीद बख्श आपके हुजरे के करीब हुजरे की तरफ मुंह करके पेशाब करने लगा। वह भी उसी वक्त तड़प तड़प कर इंतकाल कर गया। हजरत बाबा की इस तहरीर से आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि आपके जज्ब की हालत किस कदर शदीद थी कि जिस पर कोई गैर नहीं बल्कि आपके अपने 3 मामूजात भाई और पीर की औलादें एक के बाद एक ख़त्म हो गई। और इसी के साथ साथ इसका भी अंदाज़ा कीजिए कि किस कदर बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह की बर्दाश्त थी कि 3 साहबजादे मौत की गोद में जा सोए, मगर उनकी पेशानी पर बल तक नहीं आया, बल्कि पीरी मुरीदी का वही ताल्लुक़ था जो पहले रहा, बल्कि उसमें इजाफ़ा ही किया। जब आपकी वालिदा माजिद को इन दर्दनाक वाक़यों का पता चला तो आप फ़ौरन पाकपट्टन तशरीफ़ ले आईं। 3 भतीजे की मौत का उनके दिल पर बहुत गहरा असर हुआ। जब आपकी वालिदा माजिदा ने आपको बहुत ज़्यादा कमज़ोर लागर पाया तो इसका सबब मालूम किया तो उन्हें पता चला कि आप बिल्कुल भी कुछ नहीं खाते हैं। तो उन्हें अफसोस हुआ। आपने फ़ौरन अपने भाई बाबा फरीद गंजे शकर से कहा कि आपने हमारे बच्चे को खाने को नहीं दिया। इस पर हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मैंने आपके बच्चे को पूरे लंगर का मालिक बना दिया है, आप बुलाकर पूछ लीजिए। जब मखदूम अली अहमद को बुलाकर पूछा गया तो आपने कहा कि मामू जान, आपने हमें लंगर तकसीम करने के लिए कहा था, ना कि खाने को। आखिर मैं किस तरह से खा सकता था? इस पर बाबा फरीद को सख्त हैरानी हुई। अपने भांजे की पेशानी को चूमा और बहन की ओर मुखातिब होकर कहा, यह बच्चा साबिर कहलाने के लायक पैदा हुआ है। आज से यह मखदूम अलाउद्दीन साबिर है। उसी दिन से आप साबिर पाक मशहूर हुए। कुछ दिनों के बाद आपकी वालिदा ने अपने भाई बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह से दरख्वास्त की, साबिर बालिग हो गए हैं और हम चाहते हैं कि आप अपनी लड़की खदीजा बेगम उर्फ शरीफा की शादी साबिर से कर दीजिए। इस पर आपके भाई ने कहा कि मखदूम अली अहमद साबिर इस लायक नहीं है कि उनकी शादी की जाए। उन पर हर वक्त जज्बे इस्तबराक तारी रहता है और दुनियाए सुलूक से वह बहुत दूर हैं। बहन को भाई की यह अल्फाज सुनकर बहुत दुख हुआ। आप फरमाने लगी, मेरा साबिर यतीम है और मैं गरीब, इस वजह से आप इनकार कर रहे हैं।
बहन के इन कलमात ने भाई के दिल पर असर किया और आपने अपनी दुख्तर का निकाह साबिर पाक से कर दिया। कहा जाता है कि निकाह के बाद रात हुई तो जमाने के दस्तूर के मुताबिक आपकी दुल्हन को आपके हुजरे में पहुंचा दिया गया। जिस वक्त बीबी खदीजा आपके हुजरे में दाखिल हुई उस वक्त आप नफल नमाज पढ़ने में मसरूफ़ थे। जब तक आप नमाज पढ़ने में मसरूफ़ रहे वो आपकी खिदमत में ऐसे ही खड़ी रहीं। जब आप नमाज पढ़ चुके तो बीबी खदीजा को खड़े हुए देखकर पूछा कि तुम कौन हो? उन्होंने जवाब में अर्ज किया कि मैं आपकी दुल्हन हूँ। यह सुनकर आप पर जज्ब तारी हो गया और अचानक जमीन से एक आग का शोला भड़का और दुल्हन को जलाकर खाक कर दिया। हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह के कौल के मुताबिक आप जज्ब की कैफियत से बाहर न आ सके। बयान किया जाता है कि आपकी दुल्हन की दर्दनाक मौत का आपके वालिदा पर इतना असर हुआ कि वह सदमे से बेहाल हो गईं। वह खुद को इस वाक़ये का जिम्मेदार समझती थीं और इसी सदमे में उनका इंतकाल हो गया। नाजरीन, इस वीडियो का पार्ट 3 सुनने के लिए हमारे चैनल सादान इस्लामिक को सब्सक्राइब कर लें। इंशाअल्लाह अगले दिन इसका पार्ट 3 साबिर पाक की कलियर की दास्तान सुनने को मिलेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज।